अच्छा चलें तो I wanted to discuss about filters. I hope I have started recording. Okay. So uh, yesterday we discussed about some of the projects. I will try to upload the video somehow. You can take a look at those projects. I will decide the group leaders. Group leaders will decide the group members. So then you can come and discuss with me, and I will tell you what the concrete steps you need to do in your semester project. वो तो मैं कल तो मैं research papers दिखा रहा था और I was giving you a big picture, but I will now narrow it down to what needs to be done. So it's almost the end of fifth week. Fifth week, yeah. So the midterm will be in the uh, so okay. So anyways, I would expect some sort of a report from you, initial report on that project, and then in the final, I would expect a thorough review. Project is just meant. The reason for this project is there are multiple reasons. You are almost about to graduate now, so you should be working on something hands-on. It will increase your chances of doing better in interviews and looking for jobs because most of the jobs will be development based. Very rare people will ask you about your job's current law and all of these things. People would want you to develop something, mainly something to do with computers. This is what is happening around the world. This is why we want students to be more hands-on. My personal problem with the current curriculum is that it is not as hands-on as I would like it to be. Too much emphasis is on paper-based exams. It just doesn't prepare you or prepare anyone for the actual problem solving. You can't really test on paper-based exam, but that is the only way the world does test students. And if some of you do manage to do really good in your semester project, maybe you get a shot at a research paper in next summer when you are applying for job and waiting for their reply, or applying for masters and waiting for their, or applying for visas and waiting. So it gives you a chance to improve your research profile. So this is the reason I have like extracted the small parts from the things which we have been doing, which we will do anyways in the lab. This is the reason. So that is why you should go and have a look at those the discussion that we had yesterday, and that is the real value of attending this course. वो जो कल हमने डिस्कशन की है ना, ये जो चीज़ें ये मैंने भी ऑनलाइन स्लाइड्स कहीं से ली है. आई टेक समथिंग फ्रॉम विकिपीडिया. सो 90% ऑफ द कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल समवेयर. किसी किताब में लिखा होगा, किसी ऑनलाइन लेक्चर में होगा. वो जो कल डिस्कशन हुई है ना, दैट इज द रियल स्टेट ऑफ द आर्ट, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट नीड्स टू बी डन. That is something really valuable, which we can confidently claim that no other online lecture on computer vision will have that kind of session. You should go and just have a look at that lecture anyway. Uh, that is one thing. The other thing we can discuss about your assignment. I have uploaded it on MS Teams. It is just a basic assignment, especially to just get over the fear of coding for those who don't have much experience. And I know most of the WE students, some of the WE students now, they still manage to get to the 7th semester without programming. This is how our system is. I was myself a WE engineer. I know how to dodge the tests. So group बना लिया, किसी ने assignment कर दी. That management of semester projects and assignments, it does help you with grades. You manage to save time, but ultimately you don't develop the skill. And then suddenly you are in a foreign country and the person asks you, can you code it in 5 minutes? This? And then I just remember I should have done that assignment. क्या हो जाता, 2 number कम आ जाते assignment में. आज जो है ना, I would have been doing very well in the job interview. Yeah.
So that is why we want to push people towards hands-on uh, training, more of hands-on training. So what the aim is to just get you started, to get over the fear that the Python is not something that will kill you. There are so many resources online कि आप एक दफा शुरू कर देना कोई भी sophisticated new technology. After the first step is the hardest, and then things are easy. मतलब आप लैब में जाए ना तो you haven't heard about of Python and you haven't heard about Linux and how to operate Linux. You are like totally you are frozen. But if you just know how to just get the Linux computer started, you will be like miles ahead of anybody else. अच्छा मुझे कंप्यूटर ऑन करना आता है, मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया था तो मैं एक्सप्लोरर जल्दी से खोल लूंगा, फिर जो मैंने पता करना है ना मुझे गूगल और यूट्यूब बता देंगे. It gets you a long way. These small steps, they take you a very long way. You are sitting in a lab and you around the world. It's not like this that you have like friends all around you who can help you all the time. Sometimes you have to do things on your own. So this is the main reason. So anyway, the assignment is there. So अभी आप ये assignment जब करेंगे ना, then the real assignment will come next week. So what we want to discuss now, which we are not able to, I wanted all the students to hear this. So before machine learning took over image processing, we were designing algorithms using basic rules and basic understanding of images. तो जो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है ना इमेज प्रोसेसिंग में, वो इन्वेरियंस अचीव करने में हुआ है. इन्वेरियंस का क्या मतलब है? इन्वेरियंस का मतलब ये है कि मैंने एक चीज़ देखी है, अगर मुझे आप उसको साइड से दिखाएंगे ना तो भी मैं रिकग्नाइज कर लूँ कि ये वही चीज़ है, और अगर मेरे पास हो वो चीज़ तो भी मैं रिकग्नाइज कर लूँ कि ये वही चीज़ है. साइज चेंज हो जाए, व्यूइंग एंगल चेंज हो जाए, आधी छुप जाए तो भी मैं हम रिकग्नाइज कर लें, लाइट थोड़ी सी चेंज हो जाए, लाइट काफ़ी सारी चेंज हो जाए. दीज आर दी थिंग्स दैट अफेक्ट द इमेज फॉर्मेशन. तो हमारा मेजर जो इन्वेस्टमेंट रही है in the 20th century was about developing things, developing methods that can match something in two images which have very different angle or size or light conditions. So this was this we were hunting for this representation. Fully invariant, how does human vision system process कि आप चीज सामने से दिखाते हैं, चेयर सामने से दिखाई, ऊपर से दिखाई, तो भी आप एक एग्जांपल में आपको सामने से दिखाऊं ना तो आप गेस कर लेंगे कि ऊपर से कैसी होगी, साइड से कैसी होगी. ये व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम इज गोइंग ऑन इन हियर? Yes, memory learning has a role to play in it. We haven't come up with that system. The most successful algorithms right now are like these deep learning algorithms, but the kind of data they demand, it's actually one. Sometimes there are few papers where people really claim that are these networks learning something or they are just memorizing everything. क्योंकि एग्जाम्पल्स इतनी ज़्यादा हैं, आपने उनको देनी पड़ती हैं कोई भी काम करवाने से पहले, तो उनकी इन्वेरियंस जो है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज सिस्टम्स, इट इज स्टिल इट्स अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी. और कल जो लोगों ने लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल थे, मैंने आपको रीसेंट पेपर दिखाया 2020 का, वेयर दे प्रूव्ड कि डीप नेटवर्क्स आर नॉट फुली इनवेरिएंट लोकेशन वाले में. तो उसमें दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ विजन सिस्टम कि उसमें इनवेरिएंस हो. ठीक है, आई वाज सिटिंग वंस इन अ कॉन्फ्रेंस एंड देयर वाज दिस गाय फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड he was one of the pioneer की जो कनेक्ट जिन्होंने बनाया है, नाम मेरे देश से निकल रहा है उनका, Fitzbogen या something like that. He was saying that imagine you are sitting in a computer vision lecture or in a conference and you are sleeping and suddenly you have to wake up and ask a question. So
he says that just wake up and say, okay, how does this algorithm work under occlusion? No vision system works under occlusion. So people know the fundamental limitations of vision system. अगर बंदे का सिर्फ हाथ नजर आ रहा है या चेयर का कोना नजर आ रहा है तो आप विजुलाइज कर लेते हैं हाँ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हो. तो एनीवेज दिस इज व्हाट वी वांट. तो अब जो हमने जो सबसे सबसे जबरदस्त एल्गोरिथम हमने बनाया है ना अभी तक, इन माय ओपिनियन, वो हम उसको स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म कहते हैं. उसमें आप देखेंगे कि हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और ट्रेनिंग किए बगैर जो है ना हम कुछ चीज़ों को मैच करेंगे दो इमेजेस में. तो किसी भी डोमेन से आप इमेजेस ले आए, बायोमेडिकल से ले आए, टेक्स्ट इमेजेस ले आए, सीन में से इमेजेस ले आए, कोई कोई जो इमेज बनता है ना वो आप ले आए और वो एल्गोरिथम हर इमेज पे काम करेगा. इट डजंट रिक्वायर ट्रेनिंग, इट वर्क्स. आप बस दे इमेज और वो काम शुरू कर देगा. तो वी विल गो थ्रू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दैट एल्गोरिथम. तो उसमें पहला, उसमें फिल्टरिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. दैट इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज फिल्टर्स. ये जो अभी हम पढ़ने लगे, ठीक है. तो देयर आर फ्यू फिल्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये गाउसियन और लप्लाशियन, और we will try to understand these filters. Or then hopefully in later down in the lecture we will get a chance to study about a family of these algorithms that once Swift came, this scale invariant feature transform, से उसके बाद entire decade was devoted into making it better. Everybody was working with features, like everybody works with deep learning nowadays. Everybody was working with this algorithm. They were understanding अच्छा कैसे इसको स्पीड अप किया जा सकता है, नॉन रियल टाइम है, रियल टाइम बनाना है. तो इवन टिल टुडे जो हमारे पास इसके इम्प्रूवमेंट सजेस्ट हुई है ना, दे आर बेटर इन मेनली एफिशिएंसी, or they may combine it with some machine learning stuff requiring some sort of training and do better. उसको बीट नहीं किया किसी ने अभी तक. तो हम देखना चाहेंगे देयर इज एन एंटायर फैमिली ऑफ दोज एल्गोरिथम्स व्हिच इंस्पायर देम. वो जो है ना सिर्फ इंस्पायर की. तो उसमें हमें फिल्टर्स पढ़ने हैं. मैंने जब पहला लेक्चर आपको दिया था ना, मैंने आपको एक दिखाया था कि रिसेंटली पीपल ट्राई टू कंपेयर जो काम सिफ्ट करता है ना उसको डीप से करके देखने की उन्होंने कोशिश की है, और उन्होंने बताया कि स्टिल डी फीचर्स दे डू नॉट परफॉर्म एज वेल एज जो हमारे हैंड क्राफ्टेड, इसको हैंड क्राफ्टेड बोलते हैं कि हमने सब कुछ खुद डिजाइन किया, एक डब्बा दूसरा डब्बा तीसरा डब्बा, ठीक है. So we need, this is the history of computer vision. When somebody says, "Na, I work in computer vision," so this is what he should have worked in if he claims to be a vision researcher. So then he can appreciate these recent deep networks. Ke, acha, what do I expect from them? What were the limitations of previous systems? So we have seen these recent papers. ये जो अभी आपको मैंने कल दिखाया है कि उन्होंने after all this hype, they compared and it's not working as good as the classic system. So there is a lot to learn from those classic systems. So that is why we would like to study about filters. I don't like this projector, and online students are having an issue anyways. So I don't think so. बस ये है इसमें बेसिक. तो आप जो है ना, हाँ, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट लेक्चर में कि फेज से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. किसी ने मुझे उसका जवाब देने की कोशिश की थी कि हाँ कि वाई मतलब वाई डू वी वांट फिल्टर विद फेज, लीनियर फेज रिस्पॉन्स, क्यों चाहिए हमें? या ग्रुप डिले, आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप डिले कांस्टेंट होना चाहिए. लीनियर कर्व का जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों एक ही. ग्रुप डिले बोलूं कांस्टेंट या फेज रिस्पांस लीनियर फेज बोलूं, एक ही बात है.
तो उसमें वो ये होता है कि ग्रुप डिले कांस्टेंट का मतलब ये है कि हर फ्रीक्वेंसी को एक जितना डिले, ताकि इनपुट पे अगर दो फ्रीक्वेंसीज आपने एक सिग्नल है जिसमें से दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं और वो अगर मैंने किसी सिस्टम में से पास करना है तो जो आउटपुट पे सिस्टम बने ना दोनों फ्रीक्वेंसीज को अगर वो अनइक्वल तो डिले डिफरेंट होगा ना तो फिर वो डिस्टॉर्शन आ जाएगी। तो we want to process signals, we don't want to distort them for no reason। हम सिस्टम से वो करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, ये तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से वो फ्रीक्वेंसीज को आगे पीछे करना शुरू कर दें। तो फॉर दैट वी वांट सिस्टम्स विद लीनियर फेज। अच्छा, ये हमारी ख्वाहिश है कि सिस्टम जो है ना उसका फेज लीनियर हो। अचीव कैसे होता है ये गोल? आप लोगों ने डीएसपी में बनाए हैं फिल्टर, इसकी ना एक वो जो आई रिमेम्बर वेगली नाउ वन ऑफ द कंडीशंस वाज कि जो आपके जो फिल्टर टैप्स है ना दे शुड बी ऑड। तो किसी ने मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है बट आई जस्ट वेगली रिमेम्बर। एनीवेज, तो we will see 3x3 filters or 5x5 filters. Maybe it has some sort of legacy that now that we want to design filters for images, we are following something from the signal processing theory जो हमने develop। तो अगर image के point एक point पे जैसे max तो एक point पे जब result लाना हो तो एक रूप पर लेते हैं तो basically 1 plus 2x could be true, but this is again our convention. For example, you always want to place the result on the center pixel. That is just a convention. I can place the result on the top left pixel. सारी प्रोसेसिंग करके मैं रिजल्ट जो है ना वो टॉप लेफ्ट पिक्सल पे शिफ्ट कर सकता हूँ। So I don't know, maybe you are right, but the thing is that for example if I am considering about 100 cross 100 neighborhood, एक साइड पे 100 नेबर आ जाएंगे और एक साइड पे 99 आ जाएंगे, ये हो जाएगा ना। एक साइड पे एक नेबर कम आ जाएगा, तो वो जो इतनी दूर एक नेबर कम आया है उससे कितना कुछ फर्क आ जाएगा मेरे रिजल्ट में। 3x3 में तो इट मेक्स लाइक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस कि एक साइड पे दो नेबर हैं और एक साइड पे एक ही है। आई डोंट नो, मतलब in deep learning we have tested like everything and most of the things that we have inherited from signal processing उनकी हमें पे कोई पहले हमने यूज किया और फिर अब हम ना उनको डिलीट करते जा रहे हैं, दे आर फॉलिंग आउट ऑफ फेवर, कि दे वर जस्ट देयर बिकॉज हमने सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ी भी थी ना तो हमने उसी तरह की चीजें बना दी थी। maybe it applies in some other domain, in images it doesn't make sense। तो हमने हर किस्म की चीजें ट्राई करके देखी है। तो anyways, now so we will design few filters, we will see few classic filters and then we will really see the importance of Gaussian filter in image processing। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। तो Gaussian filter क्या करता है? क्या नहीं करते? अच्छा, आप ये कह लें कि Gaussian filter is low pass filter। Can I say this? क्यों है Gaussian filter low pass filter? वो तो आप मुझे उसका टाइम डोमेन का रिस्पॉन्स बता रहे हैं। ये जो आपने ड्रॉ किया ना Gaussian, ये टाइम में किया है। ठीक है, एक छोटी सी यहाँ एग्जांपल कर लेते हैं, मे बी दैट इज द एडवांटेज ऑफ कमिंग टू द क्लास। ठीक है, लेट्स से ये मेरे पास है 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1। लेट्स से ये मैंने ना एक इमेज में से ना एक रो ले ली है, ठीक है। और अब अगर मैं इस सीक्वेंस करूं इस इस
इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ, इस फिल्टर के साथ, ये टाइम डोमेन में, ये मतलब बेसिकली ये जो मैंने बनाया है ना, आप इसको कह लीजिए सारे 1 है। तो शुरू में 0 है, 0 है, और फिर 1 1 1 1 1 0 0, ये है ना सीक्वेंस। तो इसमें से ना अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इस सीक्वेंस के साथ इसको कन्वॉल्व करता हूँ ऊपर वाले सिग्नल को, क्या होगा? ये क्या हो रहा है? प्रोडक्ट होगा, फिर समेशन होगी। तो यही हमारा फॉर्मूला था ना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो जो कॉन्वोल्यूशन में होता था, पहले मल्टीप्लाई होते थे फिर जमा हो जाते थे। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, ये सारे 1 है, तो बेसिकली ये सारे जमा होंगे पहले, ठीक है। तो बेसिकली समिंग अप ऑपरेशन हो रहा है। तो हाँ, ये 5 आ जाएगा। तो आमतौर पे हम ये करते हैं कि जो हमारा फिल्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड हम 1 कर देते हैं कि करें और डिवाइड करें टोटल से। तो फिल्टर के जो है ना टोटल नॉर्म क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका 1 करने के लिए क्या करना पड़े? क्या 1/5। तो अब कन्वॉल्व करें तो क्या होगा? नहीं नहीं, फिर ये इसमें एवरेजिंग करेंगे तो क्या होगा? वहां पे 1 आ जाएगा ना। तो ठीक है, अच्छा ये सीक्वेंस है। तो अगर ये सीक्वेंस होता मेरे पास, तो क्या होता? लेट से ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और इनको कन्वॉल्व करते हैं और रिजल्ट यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको हम, ये 1 1 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना था? 1/4 से। तो ये नॉर्म 1 करने के लिए 1/4 से किया हुआ है। तो अब जो क्या होगा, अब ये इन सारे नंबर्स की जो एवरेज है ना, वो यहाँ आ जाएगी। यही हो रहा है ना, इस तरह का फिल्टर है। एवरेजिंग हो रही है बेसिकली। एवरेजिंग क्या करता है? चीज़ों का एवरेज आता जा रहा है ना, तो चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। तो इसको हम फिर इमेजेस में बोलते हैं कि ब्लरिंग हो गई। कि अगर सारे एक पिक्सल रेड है या एक वाइट है, तो एवरेजिंग फिल्टर लगाया ना, तो एवरेज कलर आ जाएगा। तो उसकी जो इंडिविजुअल पिक्सल है या इंडिविजुअल वैल्यू है, उसकी जगह उसके नेबरहुड का इन्फ्लुएंस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपने पढ़ा होगा कि ये जो हम फिल्टर्स बनाते हैं ना, जो जिनमें शार्प रिस्पांस होता है, ये बनाने इम्प्रैक्टिकल होते हैं हार्डवेयर में। तो हम जो है ना थोड़ा सा इस तरह का फिल्टर बना देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ स्मूथिंग, ये भी स्मूथिंग जैसा ही काम करेगा। हाँ हाँ, ये इस तरह की कर्व बन जाएगी ना, तो ये भी वही करेगी, एवरेजिंग वाला काम। तो इसका क्या नाम है? इसको गाउसियन ही बोलते थे ना। तो बेसिकली गाउसियन क्या करता है? एवरेजिंग करता है। और एवरेजिंग करने से क्या होता है इमेजेस में? जो पिक्सल की जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो जाती है, और नेबर्स। अच्छा, अब जितना मैं बड़ा, फिल्टर की जितनी लेंथ बड़ी होगी, क्या होगा? बहुत दूर का पिक्सल कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो फिर ब्लरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना, अच्छा चलें, ये हमने एक फिल्टरिंग कर दी। तो हम ये देखेंगे कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है गॉसियन फिल्टर की। व्हाई डू वी वांट टू ब्लर? क्या ब्लरिंग करने का क्या फायदा है? आरंट यू लूजिंग इंफॉर्मेशन बाय ब्लरिंग? मतलब ब्लरिंग का कोई फायदा है? एक इमेज ठीक ठाक था आपके पास, आपने उसको ब्लर कर दिया, हो सकता है, देखेंगे। तो अच्छा, एक एक और फिल्टर है जो आपने मुझे ट्राई करके दिखाना है। दिस इज द लास्ट थिंग एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। ये फिल्टर है मेरा, ये 1 है और ये -1 है। अब इसको 1 और -1 के साथ इसको कन्वॉल्व करेंगे, जो ऊपर दी हुई है ना चीज़, इसको कन्वॉल्व करें। इधर लिख देता हूँ 1 और -1, क्या होगा? अगर तो दोनों वैल्यू सेम है, ओरिजिनल आपका जो सीक्वेंस है, उधर आंसर
0। तो जहां 2 पिक्सल चेंज हुए आपस में, वहां पे कुछ ना कुछ आउटपुट। तो ये हम यूज करेंगे फिल्टर, ये एजेस फाइंड आउट करने के लिए ना, कहाँ एक ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है और कहाँ दूसरा शुरू हो रहा है। हाँ, बेसिकली डेरिवेटिव है, चेंज पता चलाना है। तो ऑब्जेक्ट से ही होते हैं ना कि एक कलर की चीज होती है, फिर कोई और चीज स्टार्ट हो जाती है, कोई और कलर आ जाता है, फिर कोई और कलर आ जाता है। तो दैट इज व्हाई वी नीड। तो एक तो ये हमने डेरिवेटिव या डिफरेंस लेना है, और एक हमने स्मूथिंग करनी है। और हम देखेंगे कि कैसे ये जो स्मूथिंग वाला ऑपरेशन है ना, इसके अंदर कहीं छुपा हुआ है ये वो जो सारी बातें मैंने सिर्फ की बताई थी आपको, कि चीज जब बड़ी हो जाती है तो ये पता चला लेता है। कैसे इसको पता लग जाता है? इस इमेज में जो चीज छोटी है वो दूसरे में बड़ी है, ठीक है ना? तो वो इस गाउसियन से कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप है। तो we will uncover this. It will take couple of weeks to get to that point, but this is the most important algorithm in computer vision. The networks we are developing, we expect it to perform better than this or beyond. इससे नीचे वाले हमने अभी तक कुछ एग्जांपल में इससे they are inferior. ठीक है, ओके, थैंक यू।